Hello, everybody, and welcome to Not Just Cricket, powered by Sky247.net. And it's a rather gloomy day in the cricketing fraternity because just when Australian cricket was recovering from the shock of the loss of Shane Warne, 2 months, 10 days later, they're blown out by another shocking news of the demise of Andrew Simons, who lost his life in a car crash at a 10-day age of 46. But I'm joined by Deep Das Gupta and Nikhil Chopra. And before we talk about the match, it's only right that we first talk about this. Nikhil, you've played with him. How big a Yes, I loss, have. yes, for the cricketing It's fraternity? it's huge for anybody at that age. Condolences to the family. I mean, I just thought that it's not real when I got to hear about this morning. It's unfortunate, and I had a wonderful time apart from just playing against these other. I shared about 30 to 40 days when we were doing the World Cup together, 2015. We worked for a news channel together. We spent a lot of time. What a lovely guy, full of life, helpful, incredible human being. Always saying, "Come to Australia, come be my guest." But it's just very surprising. I still can't soak in the fact that this is what hit us. And for Australian cricket as well. Always looking to go out there and uh, ha- be a helping hand with the youngsters, how to see the game, and always a fighter. Some of those innings that he played for Australia, from when they were literally on the verge of losing a game, turning it around, just goes to show how mentally strong the person was. Always a fighter. But I guess it's incredibly sad to hear that Andrew Simons is not with us anymore in person. His memories will always be with us, and I had some wonderful memories with him. Yes, it's a rather sad news, and of course there were some tweets from the cricketing fraternity. You saw Yuzinder Chahal there, Sachin Tendulkar, offering the condolences. Deep, your word on it about the loss that we have just faced, the news that we just woke up to this morning. I believe I believe Deep is having a technical issue out there, but Hmm. Nikhil, the fact that he was such a World Cup legend, Oh the yeah, all rounder that he is. I've seen. I was the just, yeah, please. the matches that he played, it's just that when you think about those memories, I'll tell you about a game, 1999. We were playing in Sydney. It was a triangular series. There was Pakistan, there was Australia, and India. And in Sydney, it rained a little bit. It drizzled, and the wicket got a little spicy. And we've always seen him come and bowl his arm over when the ball got old. He'll come and bowl off spin. But that day, he started bowling those in swingers. So somebody who could come and bowl in swing, move the ball around, just adapt to the conditions, and was able to go out there and execute. Picked up a couple of wickets as well. Just goes to show the ability how he could turn the game on its head. And I remember that one game where I think Australia were tottering with about 70, 80 for 4 or 90 for 4, and then he got that 140 odd batting in the middle. So these are memories of the man just embedded within us. That visual is still there. That wow, you said, well, the opposition's got this game in control, but then there was Andrew Simons out there standing in the middle and won the game for them from there. Yeah, Deep, your thoughts? Deep, can you hear us? I They believe we've lost. still, I think, yeah. Hmm. I believe we lost him again. All right, but having said that, of course, on behalf of Crick Tracker and Sports Eye, I'm Ridhima Pathak, and we offer our deepest condolences to his family and, of course, his friends. And it's definitely one of the most shocking news for the Australian cricket. And they've lost three legends in a row, Nikhil, in this year. It's sad. The cricketing fraternity around the world, when you're that athlete, for anybody to leave their families, it'll be tough. Heart goes out to the family, heart goes out to the country. They've been sporting icons, they've been leaders, they've been inspirations, inspirational innings, inspirational qualities that all of them had. They actually got youngsters to go out there and play this wonderful game of cricket, and looking to model their lives on people like
Andrew Simons, Shane Warne. I mean, these guys have been that sort of ह्यूमन बींग्स कि आप उस तरीके का काम करते हैं कि पूरी की पूरी जनता आपके पीछे रिदमा लग जाती Yeah. है। युवा खिलाड़ियों को वो प्रेरणा देना कि आप क्रिकेट खेलें, आप मेहनत करेंगे तो वो आप आसमान छू सकते हैं। इस खेल जी में इतना कुछ आप दे सकते हैं, पर आप मेहनत कीजिए। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है। एक इस खेल के वो ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं विश्व भर में, वो लोकप्रियता रही है जो इन्होंने वो मैदान में वो काम किया है। जी बिल्कुल। एक गुड न्यूज़ है कि पृथ्वी शॉ जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो हम्म, तो ये एक गुड न्यूज़ है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। जी। चलिए फिर आज जो मैच है उसकी बात कर लेते हैं निखिल एक बार। ऑफ कोर्स ये ऑफिशियल अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि दिल्ली कैपिटल्स ओपनर पृथ्वी शॉ हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल where he was being treated for a bout of typhoid. Shaw has returned to the team hotel where he is currently recuperating while being monitored by the DC medical team. All right, so that's a good अब news for आप Delhi. ये अच्छी खबर है, पर आप ये उदाहरण देखिए, पृथ्वी शॉ भी अपनी टीम, अपने फ्रेंचाइज के लिए कि अस्पताल से बाहर निकले और खेलने के लिए तैयार हैं। कई बार ये कहते हैं ना कि जब आपकी अंदरूनी शक्ति वो टेक ओवर करती है कि यार मेरी ना कॉलिंग ये है, तो वो Hmm. थकावट, बीमारी, वो सब कुछ भूल के आप उस जोश, उस जुनून में बह जाते हैं। नहीं तो अस्पताल से उतर के सीधा मैदान में जाके ये बोलना कि जी मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, तो पता चलता है खिलाड़ी की अंदरूनी शक्ति। जी चलिए आज की बात करते हैं द 62nd मैच ऑफ द इंडियन T20 लीग। आज डबल हेडर है वैसे। पहला मैच जो है वो है ऑफ कोर्स चेन्नई वर्सेस गुजरात, और दूसरा मैच जो है वो है लखनऊ वर्सेस राजस्थान। पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में, दूसरा ब्राबॉन स्टेडियम में। हम पहले बात करें द 62nd मैच जो कि है चेन्नई वर्सेस गुजरात। नाउ दीज टू टीम्स cannot be any more different in where they're positioned on the spectrum when you talk about the points table, where Gujarat is right on the top but Chennai is second last in the points table. Gujarat जी। 12 मैचेस में 9 जीता है और चेन्नई 12 मैचेस में 4 जीता है और 8 हारा है। तो अगर आप रन रेट भी हम्म। देख लें तो कॉन्ट्रास्टिंग है। तो निखिल अगर हम इन दोनों टीम्स की बात करें तो बोथ ऑफ देम वुड ट्राई want to try the bench players, the reserves, but two different reasons altogether. जी, और वो पिछले मुकाबले में देखा भी था कि गुजरात लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आए थे गेंदबाजी में, जो अब तक विकेट्स में जो थोड़ा सा स्पाइसीनेस नजर आ रहा था उनकी गेंदबाजी में, लॉकी गेंदबाजी कर रहे थे, अलजारी जोसेफ कर रहे थे, मोहम्मद शामी और फिर राशिद खान अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। थोड़ा सा वो स्पिन का तड़का लेके आए थे। और वो स्पिन का तड़का काम भी किया, क्योंकि हम लोगों ने बात भी की थी जिस तरीके से वो एक गेंदबाज है, भारत के लिए भी खेले हैं और एक और प्रमुख लीग में खेलते हैं T20 लीग, उनको आइडिया है गेंदबाजी करने का। दोपहर का मुकाबला है, क्या उसको एक और मौका दिया जाएगा? बहुत सी टीमें कहेंगे जी चलिए हम क्वालिफाई तो कर ही गए, क्यों ना कुछ मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देते हैं और कुछ और यंगस्टर्स को ट्राई कर लिया जाए। बट मेरा ये मानना है कि आप वो मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहते। अभ्यास के तौर पे आप बाकियों को चांस देना चाहेंगे, ठीक बात है, लेकिन आप अपनी जगह 2 अंक के साथ एकदम टॉप पे सिक्योर करने को देखें, ये मुकाबला जीते, क्योंकि इसके बाद आपका एक और, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंगलोर के साथ वो मुकाबला रहेगा। और ऊपर लेवल क्रम में आपके बैट्समैन को रन बनाना है और कंसिस्टेंटली। रिद्धिमान साहा अच्छी तरीके से कुछ मैचेस में रन बना रहे हैं। शुभमन गिल पिछले मुकाबले में वो 63 रन नाबाद उन्होंने बनाए थे। मैथ्यू वेड को जो मौका मिला था, डेविड मिलर, राहुल टिवाटिया और नीचे राशिद खान आपके लिए रन बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या रन बना रहे हैं, तो ऊपर से वो पावर प्ले में थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना। मैं वो देखना चाहता हूँ गुजरात के लिए, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना गलतियों की गुंजाइश जो है ना रिद्धिमा और कम होती जा रही है। अभी तो आपको चलिए ठीक है, आप ये मुकाबला अगर नहीं जीतते तो आप फिर भी टॉप पे रहेंगे, एक और मुकाबला जीत के आप टॉप पे रहेंगे, उसके बाद फाइनल में प्रवेश करेंगे, टॉप 2 में रहना चाहेंगे, तो फिर वो गलतियों की गुंजाइश और महीन और कम होती जाती है। तो आप वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो आप हर तरफ की तैयारी करने को देखेंगे। और गुजरात मुझे लगता है कि रिद्धिमा वो अच्छे से कर भी रही थी। सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि बीच में वो शाम के मुकाबलों में भी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने को देख रहे थे कि चलिए देखते हैं कि हम वो डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चीज, सिक्का जब हवा में जाता है जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में गिरेगा, लेकिन आपको बतौर टीम उस चीज के लिए भी तैयार रहना है जब वो जरूरी रहता है। सो आई थिंक उस लिहाज से भी ये तैयारी करके आ रहे हैं। जी
बिल्कुल देखिए, गुजरात अगर आज जीत जाते हैं तो दे सिक्योर द टॉप 2 स्पॉट्स, whereas Chennai of course is out of reckoning, but for sure they would want to play for pride. Deep, can you hear us? दीप I think नहीं struggling. जी। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं निखिल कि चेन्नई के अनकैप्ड प्लेयर्स में से वो किसको मौका दे सकते हैं। तो हम्म चेन्नई के अनकैप्ड प्लेयर्स में से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो नाम है वो है आर हंगर गेकर, एंड ऑफ कोर्स ही इज द अंडर 19 फास्ट बॉलर। और हम्म दूसरे हैं के भगत वर्मा। तो इसमें से आप किसे मौका देना चाहेंगे चेन्नई की तरफ से? देखिए, पतिराना को भी मलिंगा बोला जा रहा है। हरी निशांत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, उसमें जो नाम लिखा है। और इन्होंने अपने स्टेट की वो प्रमुख जो प्रतियोगिता है 20 ओवर वाली क्रिकेट में, इन्होंने बहुत रन बनाए हैं। लेकिन आपकी दिक्कत बतौर चेन्नई की वो टॉप ऑर्डर की नहीं है। ऋतुराज है उसमें, डेवन कॉनवॉय वो अच्छे से कर रहे हैं। आप मध्य क्रम में खिलाने को देख सकते हैं एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, जो ताबड़तोड़ तरीके से वो रन बनाने को देख सकते हैं। अब सेनापति हैं या आप फिर सोलंकी बतौर लेग स्पिनर को ट्राई करना चाहेंगे। हंगरेकर क्योंकि वो विश्व कप के हिस्सा थे, तो मैं देखना चाहूंगा कि कुछ चेंजेस तो नजर आएंगे, क्योंकि अब आपके पास ये मौका है ये कुछ गेम्स का कि आप अगले साल की टीम की तैयारी कर सकते हैं। और उस लिहाज से कि कौन से खिलाड़ी को क्या रोल या क्या किरदार निभाने को रहेगा, तो आप उनको अभी से उस चीज में आप ढालने लग जाए। पता चल जाएगा जी, कि भाई ये खिलाड़ी ये कर सकता है या ये खिलाड़ी ये नहीं कर सकता। सो इल बी गुड। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पथिराना भी हैं जिनको जिनको जूनियर मलिंगा भी बोला जाता है, तो इवन ही इज एन ऑप्शन दैट चेन्नई को ट्राई। जी, और अच्छी खासी गति भी है उनके पास। गति रहेगी। और उसके बाद आप जिस टीम का हिस्सा आप हैं, वहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जिस तरीके से मुकेश चौधरी को मौका मिला, उनका प्रमुख गेम जो है बॉल को स्विंग कराना, और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की थी। वो एक ऐसे कप्तान है, बोलेंगे आप आगे डालिए, आगे से आप 4 चौके खा लीजिए, 6 चौके खा लीजिए, 3 छक्के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को बैक नहीं करेंगे बॉल को स्विंग कराने के लिए, तब तक आप विकेट नहीं निकालेंगे। तो उस सोच से इन यंगस्टर्स के पास बहुत बढ़िया मौका है रिजवान, कि उनको जब मौका दिया जाएगा कि आप किस कप्तान के अंडर खेल रहे हैं। जी, चलिए आपको एक बार फिर याद दिला दें कि दिस इज द सेकंड मीटिंग बिटवीन दीज टू टीम्स। और जब ये पिछली बार मिले थे, इट वाज मैच नंबर 29, और ये एक थ्रिलर था, लास्ट ओवर थ्रिलर, एंड बिकॉज ऑफ थ्रिलर मिलर और राशिद खान ये मैच जीत गए थे। आपको याद है निखिल? जी अब बिल्कुल याद है। और वो जो राशिद खान के वो स्पेशल शॉट्स नजर आए थे, वो स्नेक शॉट कहते हैं क्या कहते हैं, कि बल्ला एकदम से मार के वापस खींच लेते हैं। सो बट उस मुकाबले में डेविड मिलर के वो 94 रन नाबाद जो आए थे ना, कि टॉप ऑर्डर नहीं चला था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो गेम शायद हार्दिक ने मिस भी किया था। और उससे पहले हार्दिक कप्तान हर मुकाबले में रन बना रहे थे वो। जी, ही वाज लुकिंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मध्य क्रम में किसी ने जिम्मेदारी निभाई कि यार और कोई बैट्समैन रन नहीं बना रहा, ये स्टार्ट को मैं कन्वर्ट करके मैं मुकाबला जिताने को देखता है। एंड देन एंड में आके वो राशिद खान के वो 40 जस्ट गोज टू शो कि देव गॉट प्लेयर्स। जब टीम दिक्कत में रहती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो ये टीम अंत के वो खिलाड़ी समझते हैं। वो अंत तक जी, मतलब आपको ये नहीं कि मुकाबला सेटअप किया, वो आपको मुकाबला जिता के जाते हैं। ये एक बहुत जी। बढ़िया कला है और ये एक बड़ी रेयर क्वालिटी रहती है। खैर ये गुजरात में हमने बहुत बार देखा है, उनके रेगुलर गेम्स में हमने बहुत बार देखा है कि गुजरात जहां मुझे हार तो रही याद है वो 4 मुकाबले याद है। वो 2 बॉलों में 2 छक्के। ओडीन स्मिथ नीचे आते। पहला मुकाबला जो लखनऊ के साथ हुआ था, 40 रन बनाए थे राहुल टिवाटिया ने। फिर राहुल टिवाटिया और डेविड वार्नर की, सॉरी फिर जब ये राशिद खान की साझेदारी हुई थी, फिर किलर मिलर की साझेदारी राशिद खान वाली। तो ये 4 मुकाबले तो मुझे ये याद है। ये तो गुजरात की एक आदत हो गई है कि वो लास्ट बॉल थ्रिलर्स या लास्ट ओवर थ्रिलर्स किस तरीके से अपने कब्जे में करना है। और मुझे लगता है आज भी एक थ्रिलर जरूर होगा, क्योंकि चेन्नई भी कम नहीं है। यू गॉट दीप हियर। दीप हाँ, ये बैकग्राउंड चेंज कर करके बैठ रहे हैं। फाइनली मैंने दो तीन जगह पे मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे वाईफाई जाए, कनेक्शन कहाँ पे बेहतर है। चलो फाइनली होपफुली कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। या सॉरी गाइस। No problem, Deep. So, before we get into the match, we were, of course, speaking about the shock of Andrew Simon's demise,
in a car crash. Hmm. Your thoughts on it? Yeah. Yeah. First of all, listen. Obviously, it's a shocker because it's what my age, almost my age, maybe a senior to me. But देखिए cricket के बारे में तो सब बोलेंगे. Everyone's going to talk about how good he was, which he was. He was one of the most talented of his generation. But whatever limited interactions I've had with him, यारों के यार जिसे कहते हैं, he was like that. He was a perfect team man. He would do anything for the team. And for him, it was like he had the same mentality as if you're going to a war with your guys, so you're in the trenches. So it was like that. It was like he was ready to actually, and I'm this is quite literally, he was ready to take that bullet for you if you were in his team. So that's the kind of guy he was. Yeah, okay, yeah, absolutely. So you ask anyone who's been ever his teammate, and he'll tell you he was quite literally ready to do whatever the team required him to do. Yeah, we saw the tweets, of course, and there's, of course, second year thoughts there. We saw Yuzvinder Chahal, Sachin Tendulkar, of course, mentioned that. It is rather shocking, and I mean, it's something that the Australian cricket. It's the heart goes out for Australian cricket because they've lost three legends in this year, just when they were recovering from Shane Warne, of course, Rob Marsh. So the next is Andrew Simon. So it's really, really difficult. Okay, talking about the match that we have today, Deep, when you got Chennai and Gujarat wanting to sort of cement their position in the top two. Chennai, on the other hand, are out of reckoning. लेकिन पिछला मैच जो वो हारे थे मुंबई से, उन्होंने ट्वीट किया था not the end of the road. So today, of course, they'll be playing for pride, but their chances against Gujarat. I think a little more than pride here. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि this is also I'm seeing this season for Chennai almost like the 2020 season, जहाँ पे बहुत जल्दी matches हार गए थे and they were kind of out of the tournament really early, but they used that time really well to figure out कि अगले साल क्या करना है, सही combination क्या होगा, कौन कहाँ पे खेल सकता है, नहीं खेल सकता है. So I think we're hearing a lot of things, rumors as, so I don't want to talk about them, about a few players who might be there, might not be there next season. So I think ये जो time है, क्योंकि ये जो match time है, ये नहीं मिलेगा CSK को इसके बाद. तो ये जो matches है, it is, I think from that perspective, I'm sure MS will be looking to see कि अगले साल के लिए कौन किस जगह पे बैठ सकता है. जी. Alright, तो हमने खैर uncapped players की बात की है. एक बार आपको भी दिखा देते हैं. Do you reckon any uncapped players, these uncapped players from Chennai who will be playing today? So let's take a look of the names that we have here. जिनको आज चांस मिल सकता है. देखिए, ऑब्वियसली जगदीशन उनमें से एक है जो खेल सकते हैं. हरी निशांत है और सेनापति, बिकॉज सेनापति के बारे में काफी हमने सुना है. सो या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई एक खेल सकता है. सेनापति का मैं सुन रहा था, अभी हम बात कर रहे थे कि देयर इज अ गुड चांस दैट ही माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, और मे बी जगदीशन एज वेल. All right. So these are some players that we can look forward to, जिनको आज मौका मिल सकता है. खैर, एक बार numbers tracker की तरफ चलते हैं. This is numbers tracker powered by Sky247.net. सबसे पहले मुकेश चौधरी की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं मोस्ट विकेट्स इन अ पावर प्ले बाय दिस मैन. ये कितने खुश होंगे अपना नाम उस लिस्ट में देखकर. निखिल, उनके ठीक नीचे मोहम्मद शामी. वैसे ये देखिए खुश बहुत होंगे, और चेन्नई के लिए अगले साल की तैयारी के लिए जब दीपक चाहर भी आ जाएंगे वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हीं की जगह पे तो आके इनके हाथ में नया गेंद थमाया था और वो वही रोल पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पावर प्ले में वो विकेट चटकाते हुए. जिस तरीके के आंकड़े दीपक चाहर के भी हैं इस टीम में, ये बहुत असरदार और बहुत खतरनाक रहेंगे. लेकिन ये सूची आप हम दिखाते रहेंगे ना, तो बतौर गेंदबाज आपका दिल जो है ना, वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो 56 इंच की छाती, उस तरीके से कुछ हो जाएगी इनकी भी, क्योंकि उस सूची में जो बाकी के गेंदबाज है ना वो सब अंतर्राष्ट्रीय थे, तो इनकी भी 56 इंच की छाती हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने काम ऐसा किया. लेकिन पाँव जमीन पे रिद्धिमा, लेकिन पाँव जमीन पे होने जरूरी है. जी बिल्कुल दीप, पाँव जमीन पे होंगे और अगले सीजन में इनके चांस डेफिनेटली, क्योंकि एक चीज जो चेन्नई का है वो ये कि एक तो मौके पूरे देती है, और ऊपर से दे आल्सो मेक प्लेयर्स, राइट. उनको प्लेयर
बनाते हैं, मेंटोर करते हैं, तो एक तो जब आप आईपीएल में आपका नाम आता है तो ऑब्वियसली आप एक्सट्रीमली हैप्पी। उसके अलावा जब एक तो ऐसे टीम्स में आते हैं जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे मुझे मेंटोरिंग भी करेंगे लोग, और ऐसे ऐसे लोग जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से वो दुगना हो जाता है। और मेरे ख्याल से चेन्नई एक वैसी एक टीम है जहाँ पे जब आपको मौका मिलता है तो पूरी तरीके से मौका मिलता है, और कुछ सोच के आपके बारे में कुछ सोच के आपको पिक किया जाता है। तो वहीं पे मुकेश जैसे, जैसे अभी निखिल भाई ने कहा कि दीपक चहर साथ में मुकेश लेफ्ट आर्म सीमर, जरूर कुछ तो देखा है उनमें। और ये जो मेंटोरिंग प्रोसेस है, सिमरजीत जो पहले 2 मैच खेले थे और जो फिर आखिरी मैच जो खेला, अंतर आप देख लीजिए उनके परफॉर्मेंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गेंदबाजी में। और मैं बता रहा हूँ जी ये जो बोलर्स हैं अगले 1-2 साल में, सिमरजीत, मुकेश चौधरी will be the front line bowlers Chennai के लिए, and will have a very good chance of representing the country. that's right. जैसे निखिल ने बोला पैर जमीन पे होने चाहिए, दीप things that he's doing right and he should continue doing. दीप ऑब्वियसली आई मीन देखिए, वो चेन्नई ऐसा ही एक खेमा है जहाँ पे अगर सबसे द बिगेस्ट डॉग इन दैट रूम कैन बी एज ग्राउंडेड एज ही इज, तो बाकी लोग तो yeah ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मतलब वहां पे आपके पास वो एक होता है ना, कुछ कुछ जगह पे होता है कि आपके पास वो मौका है, यहाँ पे तो वो मौका ही नहीं है। क्योंकि आप अगर आसपास देखेंगे, जो सबसे बड़ा नाम है, जो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट इन 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 वर्ल्ड क्रिकेट, व्हाइट बॉल में, वो इतने ग्राउंडेड है, फिर आपके पास तो मतलब सोच ही नहीं आ सकती कि आप यू कैन थिंक बियॉन्ड ऑल दैट। तो ये मौके की बात कर रहे हैं तो फिर की बैटल दिखाते हैं और देखते हैं इस पे मौके पे चौका कौन मारेगा आज। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद शामी और ही इज अप अगेंस्ट कॉन्वे एंड ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़। अगर एक बार इनके नंबर जरूर दिखाएंगे आपको। दिस इज द बैटल हियर। निखिल, हु इज गोइंग टू कम आउट ऑन टॉप वर्सेस देखिए, गायकवाड़? शामी जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं वो अद्भुत। बट मजे की बात ये है कि जब दोपहर का मुकाबला होता है ना, तो जी बैट्समैन के फेवर में हावी होना थोड़ा सा और आसान हो जाता है फास्ट बॉलर के खिलाफ। क्योंकि अगर मोहम्मद शमी का गेंद वो शरारत नहीं करता, और ऋतुराज को भी पता है कि वो 8-10 गेंदें खेल लेंगे, तो अगर दोपहर के बॉलर वो थोड़ा मूव नहीं करेगा, मदद नहीं मिलेगा, समुद्र के किनारे की वो हवा का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिर्फ गर्मी से आप ये पिच जो है वो पकी जा रही है, तो वो चांसेस बैट्समैन के थोड़े से बढ़ जाते हैं रिद्धिमा, और उसी का फायदा उठाने को देखेंगे ऋतुराज भी। जी। खैर ये तो ऋतुराज गायकवाड़ है जहां मोहम्मद शमी को पता है इनके अगेंस्ट खेल चुके, लेकिन ही इज येट टू बोल अगेंस्ट कॉनवे दी। तो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। उठा सकते हैं, लेकिन कॉनवे एक बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे, साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, और अब ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं। और उनका जो जो खेलने का तरीका है वो बहुत ही सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है उनका। ही इज वेरी ओल्ड स्कूल इन हिज अप्रोच, कि बहुत ही टेक्निकली करेक्ट है। तो देखिए, शामी किसी को भी आउट कर सकते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट्स जस्ट दैट कि वो जो फाइट है वो बहुत नजदीकी होगा। और निखिल भाई जैसे उन्होंने कहा कि दोपहर का मैच, और मैं अभी पिच देख के आया हूँ, तो उतना खास वास है नहीं, सूखा हुआ दिख रहा है पिच। लेकिन क्योंकि हम मोहम्मद शामी की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं बात कर रहे, जितना ज्यादा पाटा होता है, जितना ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है, उतना बेहतर वो गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद शमी। और मैं उनसे एक बार ऐसे पूछा भी था, मैंने कहा यार ये सेकंड इनिंग्स वाला चक्कर मुझे बताओ कि यार फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद शमी के नंबर्स अच्छे नहीं होते टेस्ट मैच में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में, कहता है पहले इनिंग्स में तो सभी डालते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब थोड़े से सब थक जाते हैं तब मैं डालता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी सही है। जी मैं निखिल। लेकिन मैं रिद्धिमा दीप से पूछना चाहूंगा, ये तो मैदान में बैठे हुए हैं, दोपहर का मुकाबला है, लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, चांसेस है कि आज दोपहर के मुकाबले में थोड़ा सा आराम मिल सकता है गुरुजी को, क्योंकि तैयारी अब करनी है यहाँ से, एक विकल्प वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दोपहर का मुकाबला गर्मी में। नहीं, अभी प्रैक्टिस में वो डाल रहा था, तो अभी जब करते हैं वार्म अप वगैरह तो ही इज बोलिंग, ऐसे वो खेलेगा जरूर। व्हाट यू डोंट वांट, क्योंकि गुजरात जिस सिचुएशन में है, वहां पे आप क्वालिफाई कर चुके हैं, चांसेस आर कि अगर 2 मैच Deep, I think you're blinking again. हारते हैं फिर भी यू माइट क्लेम।
Okay. All right. Deep, you're breaking again. While you connect, एक और की बैटल है निखिल. अगले की बैटल के आपके नंबर हम आपको जी। नंबर्स दिखाते हैं. But Bravo versus of course Miller and Tewatia. तो यहाँ पे हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल रहेगी, क्योंकि उस सही फ्रंट समय पे सिचुएशन. वो ब्रावो आके वो गेंदबाजी करते हैं. जी. वो 84 गेंदे, खैर टिपाटिया ने तो कम ही खेली है, 19 उसमें उन्होंने 25 बनाया, लेकिन 114 रन मिलर के, और औसत भी देखिए वो 28.5 की है. स्ट्राइक रेट दोनों की बढ़िया है. औसत चाहे टिपाटिया की थोड़ी सी गिर भी जाती, 2 दफा आउट किया हुआ है, पर किस स्टेज पे आके वो गेंदबाजी रहती है, इसका बहुत बड़ा फर्क रहेगा. रिद्धिमा, मुझे जो लगता है कि मध्य क्रम के बल्लेबाज जो है ना, उनका वो किस तरीके से वो रन बनाते हैं, किस सिचुएशन या किस स्टेज में मिलर और टिवाटिया जब बल्लेबाजी करने आएंगे, तो उस समय क्या स्टेज है कि आप पार्टनरशिप बनाने को देख रहे हैं, या एक अच्छी साझेदारी हो गई है, आखिरी 5 ओवर में आप सिर्फ विस्फोट करने को देख रहे हैं. तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा. बट दिस इज क्लियरली अ बैटल टू वॉच आउट फॉर, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, बिकॉज दोनों चैंपियन, ये खिलाड़ी की लड़ाई होगी. एक जो डेथ ओवर्स में कड़ाकेदार चौके और छक्के लगाते हैं, और हाँ. एक गेंदबाज जो इतने साल से हर बैट्समैन की परेशानी का सबब है कि इनसे आप जो है ना मार नहीं खा सकते. तो वो ये मजेदार बैटल होगी. जी, एकदम क्रंच सिचुएशन होने वाला है. अगर ये जो बैटल है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इट्स गोना कम एट अ क्रंच सिचुएशन. वी वर टॉकिंग अबाउट द बैटल बिटवीन Bravo, Miller and Yeah. Tewatia. Yeah, I mean, see, the advantage ये है कि आफ्टरनून मैच है, पिच जो है वो सूखी हुई है, so it will help Bravo और उनके जो वेरिएशंस है दूसरे, which might not help him is कौन से एंड से डालते हैं. और क्योंकि वैसे ही वानखेड़े का जो ग्राउंड है वो छोटा है, यहाँ पे जो सबसे लंबा है बाउंड्री वो भी 72-73 मीटर है, तो उतना ज्यादा लंबा नहीं है. एक तरफ लंबा, एक तरफ छोटा है. So that works in the favor of the batters. So it'll be a very, very interesting thing. But जिसके पास तेज गेंदबाजों के पास वो काबिलियत है कटर्स डालने की और स्लोज वगैरह की, they will benefit इस पिच के ऊपर. This is my reading. और राइट, ठीक है. तो फिर यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कौन से की बैटल से. एक बार आपको फैंटेसी टिप्स भी दे दें. सो दिस इज फैंटेसी ट्रैकर पार्ट बाय 247.net. निखिल, ये आपकी टीम है. कैप्टन है शुभमन गिल. और देखिए, शुभमन गिल पिछले मुकाबले में वर्ष आता है, कॉन्वॉय तो रुक ही नहीं रहे. वो ऐसा लग रहा है रनवे पे बैटिंग कर रहे हैं. दे धनाधन चल रहा है हिसाब किताब. ऋतुराज गायकवाड़, हार्दिक पांड्या, ये मेरे लिए ये अपनी अपनी टीम के वो मैच विनर्स है. अंबाटी रायडू को वापस खींचा गया. हम सब पढ़ रहे थे कि वो मन बना लिया, तो मुझे लगता है कि अच्छे मेंटल स्पेस में है, तो आज फ्री होके खेलने को देखेंगे. मोइन अली मेरे लिए एक हमेशा बढ़िया खिलाड़ी है. बैट से बॉल से मोइन अली आते हैं, हरफन मौला खिलाड़ी, आपको हमेशा अंक या कुछ ना कुछ योगदान देके जाएंगे. खेला मिला, रिजवान साहा, राशिद खान, मुकेश चौधरी एंड ठीक क्षणा का निशाना ठीक लगना चाहिए रिजवा, तभी तो हमारे और आपके वो अंक मिलेंगे ना. और दोपहर का मुकाबला तो ठीक क्षणा आपको तंग करेंगे. आपकी टीम में है कि नहीं ठीक क्षणा, दीप? डेफिनेटली मेरे टीम में तीक्ष्णा होंगे, और स्पिनर्स जैसे कहा कि स्पिनर्स डेफिनेटली would be a good choice इस पिच के ऊपर. जी. तो फिर टीम जो टॉस जीतेगी उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज एक स्टैट है हमारे पास कि द टीम्स बैटिंग फर्स्ट, एवरेज स्कोर है उनका 192 वहां खड़े में. तो बताएं क्या कर सकते हैं टीम्स टॉस जीतकर डे गेम में वहां खड़े में? मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पिच है वो, क्योंकि ड्यू फैक्टर है नहीं, और सेकंड हाफ में धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, इट विल गेट स्लोअर एंड ड्रायर. सो विन द टॉस एंड यू कैन बैट फर्स्ट. व्हाट अबाउट यू निखिल? देखिए, आप तो हमेशा दोपहर का मुकाबला आप चाहते हैं कि आप पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि गेम जैसे चलता है ना, तो अगर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर भी होता है, थोड़ा धीमा होता है पिच, तो आपका स्पिनर जो है वो और असरदार साबित हो सकते हैं. तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि जो भी कप्तान टॉस जीते हैं तो वो पहले बल्लेबाजी करने को देखें. लेकिन अगर गुजरात कप्तान हार्दिक पांड्या अब कुछ टॉस जीते हैं, तो वो कुछ तैयारी के लिए, कुछ अलग करने के लिए जरूर सोच सकते हैं. बट मैं हैरान नहीं होगा, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने को देखेगा. चलिए, हार्दिक पांड्या जी की बात की हमने, तो हमारे पास एक पोल है जो हमने कंडक्ट किया था, जिसमें ऑडियंस ने वोट किया है. आपको वो पोल दिखा देते हैं. और जो हमारा सवाल था, वो सवाल ये है कि इज हार्दिक रेडी टू लीड इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन एब्सेंस ऑफ सीनियर प्लेयर्स? यस 76%, नो 24%. निखिल, आपकी राय क्या है?
देखिए तैयारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मजे की बात देखिए, अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले कुछ मुकाबलों में वो टीम से बाहर थे क्योंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे। क्या वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलने को देख रहे हैं, या भारत को उनकी सेवाएं चाहिए विश्व कप में कि बतौर गेंदबाज भी, अगर वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बाकी सीनियर खिलाड़ी अगर रेस्ट कर रहे हैं, तो क्या केएल राहुल अवेलेबल नहीं होंगे? क्योंकि केएल राहुल टी20 के मुकाबले उनसे पहले से वो लीड करने को देख रहे हैं। अगर केएल राहुल भी अभ्यास मतलब रेस्ट विश्राम करने को देख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है शिखर धवन भी एक दावेदारी पेश करेंगे बतौर कप्तान। सो बट आई वुड वांट टू सी हार्दिक पांड्या, forget about captaincy right now. I would want him to be batting and bowling at his best. I don't want to give him any more burden. कप्तानी में कोई कमी नहीं है, but as a player विश्व कप में उनका बेस्ट निकालने के लिए I need him to keep bowling as well. That's right. Deep, before we take your comments on Hardik Pandya's, taking on captaincy in the absence of senior players, Chennai won the toss and जैसा कि दीप ने कहा, have opted to bat first. तो जो changes है टीम में वो हमको पता चलेंगे थोड़ी ही देर में, but फिलहाल हार्दिक पांड्या for captaincy in the absence of senior players, Deep. Uh, Again, depending on who are the players absent, senior or even otherwise, अगर आपके पास दूसरे कुछ options जैसे ऋषभ वगैरह भी जो हैं, अगर वो भी rest ले रहे हैं तो that's a different issue. But yeah, I mean, depending on who's available. Because मैं भी एक ही I'll go with what Nikhil bhai just mentioned कि पहले तो वो वापस आए टीम में and just settle down because काफी साल नहीं है, वर्ल्ड कप तो खेला उन्होंने, लेकिन पिछले 5-6 महीने से टीम के बाहर। तो फर्स्ट come to the side, come inside, come into the playing 11, settle down हो जाए और उसके बाद we'll take it forward. Alright. So Dhoni has made a statement for this match. We have a lot of changes. मुझे याद है जब उन्होंने definitely not बोला था. It's trending till date. So we've got the changes. We'll come to know in a bit. But Uttapa, Bravo, Theeksana and Raidu are sitting out for this game. तो चार खिलाड़ी जो है वो चेंज है। मैं चेन्नई की टीम आपको सुना देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, नारायण जगदीशन, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, मोइन अली, मिचेल सेंटनर, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह एंड मथीसा, पथिराना, मुकेश चौधरी। ये है चेन्नई की टीम। और वहां पे गुजरात की रिद्धमान साहा, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तिवाटिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, साई किशोर, लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद शमी एंड यश दयाल। सो लॉकी आज फिर बाहर बैठे हैं। लॉकी जी को आज फिर मौका नहीं मिला है, बट चार चेंजेस के हैं चेन्नई। जी, और गुजरात में हमने बात भी की थी एक्चुअली पथिराना की, और उन्हें मौका मिल गया आज जूनियर मलिंगा को। So which is good. I think वही वाली बात है जो हम लोग बात कर रहे थे और दीप भी कह रहा था कि भैया कौन से खिलाड़ी को क्या रोल या क्या किरदार अगले साल में देखना चाहेंगे, कप्तान धोनी साहब या इस टीम के कर्ता धर्ता। जी दीप, मुझे पता नहीं ये आप हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इस हंसी का कारण जानना था। He had a very nice walk when he heard about the changes for Chennai, but I don't think he can hear me right now. Anyway, quick predictions, Nikhil. वानखेड़े में कौन जीतेगा आज? देखिए, मैं तो गुजराती थाली में जब अफगान जलेबी का तड़का हो तो मैं गुजराती थाली के बारे में ही बोलूंगा, रिद्धिमा। सो गुजरात, बिकॉज चेन्नई इज ट्राइंग न्यू थिंग्स, सो आई वोंट बी सरप्राइज। और एक टीम जो अच्छा कर रही है और रिदम के साथ चल रही है, सो नो सरप्राइज। आई वुड एक्चुअली बैक गुजरात। ओके, ऑलराइट, तो आई वुड बैक चेन्नई, क्योंकि बस मतलब कुछ अलग करना है नहीं, कुछ अलग नहीं, मुझे ऐसा लगता है चेन्नई जीतेगा। चलो ठीक है फिर, गुड। मतलब यंगस्टर्स को, रिदमा इज बैकिंग द यंगस्टर्स, गुड। Well, it's not necessarily all youngsters there in that team, but having said that, मौका मिला है काफी youngsters को। But चलिए आज हम बैक करेंगे चेन्नई को। निखिल बोल रहे हैं ऑफ कोर्स गुजरात। चलते हैं वानखेड़े में, देखते हैं क्या होता है। चेन्नई with a lot of changes out there. गुजरात remains unchanged. गुजरात coming out of a big win against लखनऊ। चेन्नई जो है हार के आ रहे मुंबई से, तो क्या वो आज जीतेंगे? ये सवाल सिर्फ आपको जवाब मिलेगा after this match. Join us at 6:45 again for the mid show.